بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ چارجڈ پارکنگ کی جعلی پرچیاں آدھا شہر پارکنگ کے نام پہ مافیا نے تقسیم کر لیا۔ جعلی پرچیوں کے استعمال ہونے کا انکشاف ڈائریکٹر چارجڈ پارکنگ نے ڈی سی اور ایس ایس پی ٹریفک شرکی کو خط لکھ دیا۔ غیر قانونی پارکنگ کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ این آئی بی ڈی اسپتال مشرق سینٹر کریم پلازا میں پرچیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ سر شاہ سلیمان روڈ اور اتوار بازار یونیورسٹی روڈ پر بھی استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جعلی پرچیوں سے پارکنگ مافیا کی چاندی ہو گئی۔ مقامی حکومت کو اب تک کروڑوں کا ٹیکہ لگ چکا ہے۔ بتاتے چلیں کہ جان بچانے والی ادویات کی پھر قلت، ان سمیت دیگر ادویات نایاب، قیمتیں آسمانوں پر پہنچ گئی۔ سٹور مالکان نے شکوہ کیا کمپنیاں تاخیر سے ادویات دے رہی ہیں۔ دوسری جانب راستوں کی بندش نے پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کو بری طرح متاثر کر دیا۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر معاملہ حل کرائیں، ورنہ صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر، راستوں کی بندش پر پیٹرولیم ڈیلرز سراپا احتجاج۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ اگر راستے فوری طور پر نہ کھلوائے گئے تو پیٹرول پمپس پر قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ عبدالسمی خان کا کہنا ہے کہ راستوں کی بندش کی وجہ سے صرف پیٹرولیم مصنوعات ہی نہیں بلکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ہزاروں کنٹینرز بھی پھنس چکے ہیں، جس سے تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ خالی پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اور بھی پروڈکٹ ہے جو ہائی وے سے جاتے ہیں، آتے ہیں، امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے، ملک کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں ڈائریکٹ پی ایم سے ریکویسٹ کروں گا وہ اس کو خود ہینڈل کریں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں۔ چیئرمین نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر مسئلہ حل کروائیں تاکہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات اور تجارتی سامان کی سپلائی بحال ہو سکے۔ خط لکھ دیا اور کام ہو گیا، سب ڈرتے ہیں، ہمت کسی میں نہیں، چاہے پبلک پریشان ہو یا پیٹرول ملے نہ ڈیزل ملے۔ اب صرف اس کا علاج یہ ہے کہ کینال کا جو مسئلہ ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر میٹنگ کر کے طے کریں۔ عبدالسمی خان نے بتایا کہ انہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے راستے کھلوانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، تاہم اب تک عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ شدید پریشان ہیں اور صورتحال روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 20۔ کراچی میں ٹریفک ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے خبردار، پولیس اور ٹریفک حکام کی قانون شکنوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں۔ درجنوں گاڑیوں کے کالے شیشے، فینسی نمبر پلیٹیں اور ہوٹرز اتار لیے۔ تفصیلات سلمان سلیم کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کالے شیشے، فینسی نمبر پلیٹس اور ہوٹل لگانے والے ہوشیار، قانون شکنوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ بلوچ کالونی سے کورنگی کاز وے تک پولیس اور ٹریفک حکام کا ایکشن، درجنوں گاڑیوں کے کالے شیشے، فینسی نمبر پلیٹس اور ہوٹلز کو اتار لیا۔ انفورسمنٹ افسر ٹریفک پولیس محمد شفقت نے بتایا کہ DIG ٹریفک اور اعلیٰ پولیس حکام کی ہدایات ہیں، ممنوع اوقات پر نکلنے والے واٹر ٹینکرز اور ڈمپرز کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ فٹنس سرٹیفکیٹ اور روڈ پرمٹ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ یہ افسران والا کی طرف سے جو ہے یہ کچھ جو مہم ہے اس میں خاص طور پہ ٹینٹنگ گلاسز ہیں، یہ فینسی نمبر پلیٹس ہیں اور اس طرح کی دیگر مہم ہیں، اس کے لیے جو ہے کوارڈینیٹ کرنے کا آرڈر ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس کے ساتھ آپ کوارڈینیٹ ہو کے تو چلان کریں۔ لیکن آج جو ہمارا زیادہ موٹیو ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ ہم لوگ یہ ٹینٹنگ گلاسز اور فینسی نمبر پلیٹ اس طرح کی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ واٹر ٹینکرز کے پاس جو آج کل ہے، سب سے پہلے تو ان کے پاس QR کوڈ ہونا چاہیے، بار کوڈ ان کا، ادروائز پھر ان کے پاس پرمٹ ہے، فٹنس ہے، ڈرائیور کا جو ہیوی لائسنس ہے وہ ہونا چاہیے۔ DSP بلوچ کالونی خوشنود اور SHO بلوچ کالونی مظہر علی کانگو SO سمیت دیگر افسران شہریوں کی گاڑیوں کو چیک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خلاف ورزی پر ہزاروں روپے کے چالان بھی کیے گئے۔ کیمرامین عمران کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ دریائے سندھ سے نئی کینالز نکالنے کا معاملہ طول پکڑ کے عدالتی امور بھی متاثر۔ کراچی کی مقامی عدالتوں میں آج بھی سناٹا چھایا رہا۔ وکلاء کی تیسرے روز بھی ہڑتال۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کا معاملہ
वकला अपने मिशन पर गामजन। सिटी कोर्ट में तीसरे रोज भी हड़ताल, सैकड़ों केसेस की सुनवाई न हो सकी, अदालत के दरवाजों पर ताले लगे रहे, 3 मायूस लौट गए। वकला ने अज़म जाहिर किया कि वफाक ने मुतालबात तस्लीम न किए तो अदालतें बंद रहेंगी, एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। जब तक वफाक अपना फैसला वापस नहीं लेता, ये धरना, ये स्ट्राइक, ये बैकआउट चलते रहेंगे। कराची बार में पूरी फुल स्ट्राइक के कॉल करी हुए। ये फ़कत जंग एक कराची की नहीं है, ये पूरे सिंध की है और ये सिंध धरती सबकी है। हमारी फ़कत एक ही है कि कोई कनाल ना बनना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो। ये पैगाम है उन लोगों के लिए कि जब तक आप हमारे मुतालबात नहीं मानोगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और बबरलो के साथ साथ हमने कमू शहीद और एक और भी रास्ते हैं जो पंजाब की तरफ जाते हैं, उनको हमने ब्लॉक किया हुआ है। और कल हमने जो आप अभी बाईपास का बता रहे हो वहाँ पर भी हमने ब्लॉक किया हुआ था। अभी थर्ड फेज़ का 74 आवर्स का 72 आवर्स का जो हमने उनको टाइम दिया हुआ है। अगर उसके बीच इन लोगों ने अपने ये जो ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर वापस लेते हैं और नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं देते तो इंशाल्लाह हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम उनके रेलवे ट्रैक बंद करेंगे। सिटी कोर्ट में वकला और अदालती अमले के अलावा कोई कोर्ट में दाखिल ना हो सका। वकला का मरकजी धरना बबरलू बाईपास पर जारी है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। दूसरी जानिब दरियाए सिंध से केनाल्स निकालने का मामला, जना अस्पताल के डॉक्टरों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मरीजों का इलाज किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जना अस्पताल यूनिट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजीम खोसो कहते हैं दरियाए सिंध से केनाल्स निकालने के खिलाफ हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। कनाल्स का मामला, मसीहा भी सरापा एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर अमार दानिश ग्रुप की जानिब से स्याह पट्टियां बांधकर मरीजों का ओपीडी और दीगर शोबों में मायना और इलाज किया गया। जनरल सेक्रेटरी वाईडीए जिना अस्पताल यूनिट डॉक्टर अजीम खोसो और दीगर डॉक्टरों का कहना था कि अगर हुकूमत ने फैसला वापस न लिया तो वकला तहरीक की तरह तहरीक चलाएंगे। पहले ही सिंध में पानी की कमी है, मजीद हो जाएगी। तो केनाल के रिलेटेड केनाल हमारे लिए बहुत ही अहम है। ये हम सिंध के अवाम के लिए रेल लेंगे क्योंकि पहले हमारे पास पानी की बहुत कमी है, शदीद किल्लत है पानी की हमारे पास। तो इस अगर शदीद किल्लत की मौजूदगी में अगर हम केनाल्स बनाएंगे तो ये हम सिंध को एक दीवार से लगाना है। अगर ये हम अल्टीमेटम दे रहे हैं फेडरेशन को, अगर 3 दिनों के अंदर ये नोटिफिकेशन नहीं आता, केनाल कैंसिलेशन की नोटिफिकेशन नहीं आता तो हम फिर बाइकआउट की तरफ जाएंगे। दरियाए सिंध पे इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और इसलिए हमारा डॉक्टर्स का ये है कि हमने फ़िलहाल ये टोकन स्ट्राइक दी हुई है। और ये जब केनाल बनेंगे तो उसके बाद जो पहले ही यहाँ पानी का इतना फुकदान है, इवन कराची में भी पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये और कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी पे मुबनी है, इसको ख़त्म किया जाए। डॉक्टरों का कहना था कि वो अभी पुरअमन तरीके से स्याह पट्टियां बांधकर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, लिहाजा इस अहम मसले पर फौरी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली की कीमत में कमी, ताजिरों ने फैसले को मुआशी रिलीफ करार दे दिया। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के सदर चौधरी ज़िशान गुज्जर कहते हैं कि बिजली सस्ती होने से कारोबारी लागत कम आएगी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के अंधेरों में बिजली की कीमत में कमी ने रोशनी की एक किरण दिखा दी। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के ताजिर दोबारा से मार्केट की रौनक वापस लौटने के लिए पुरुम्मीद। मार्केट के सदर चौधरी ज़िशान गुज्जर और सेक्रेटरी जनरल मलिक राशिद का कहना था कि ताजिरों का देरीना मुतालबा था जो वफाकी हुकूमत ने पूरा किया। फर्नीचर की तैयारी में भारी मशीनरी इस्तेमाल होती है जो बिजली का भारी लोड लेती है, जिसके बायस आमदनी का बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों में नजर हो जाता था। महंगी बिजली से कारोबारी लागत बढ़ जाती है। 7.5 रुपए कमी कारोबार के लिए अच्छा शुगुन है। जो बिजली की कीमतें कम हुई हैं, इस पे ताजर बरादरी के अंदर जो है ना खुशी की लहर आती है। और जो हमारा मुतालबा था कि बिजली की कीमतें जो है वो कम की जाएं, फर्नीचर सेक्टर ख़ास तौर पे जो है वो हमारी जितनी भी मशीनरी है वो सारी की सारी जो है वो बिजली के ऊपर चलती है और हमारे एक आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो बिजली के उसमें चला जाता था। बिजली सस्ती हुई तो बड़ा खुशाइंद फैसला हुआ है। ये हम अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत को कि कुछ गरीबों का सोचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर सोचना शुरू किया है तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता कहीं बाकी चीज़ों के बारे में भी सोच लें तो बेहतर हो जाएगा। मार्केट के अहदेदारान ने उम्मीद जाहिर की कि बिजली की कीमतों समेत हुकूमत ऐसे इकदाम करती रहेगी जिससे रिलीफ मिलता रहेगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जना अस्पताल में डॉक्टर्स के 4 रोज़ बाइकआउट के बाद ओपीडीज खोल दी गईं। ओपीडीज खुलने पर मरीजों का रश लग गया। शहरी चेकअप के लिए पहुंच गए। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर्स और लोहाइकीन का झगड़ा, जिना अस्पताल में डॉक्टर्स का बाइकाट खत्म। 4 रोज बाद अस्पताल की ओपीडीज खुल गयीं।
इंतजामिया और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ओपीडीज खुलवा दी। ओपीडीज डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अदील समू और सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने खुलवाई। डॉक्टर अमार दानिश का कहना था कि हमारे जायज मुतालबात पूरे हो चुके, मरीजों की खिदमत का सिलसिला शुरू कर दिया है। हफ्ते वाले दिन एक वाकया होता है जिसके अंदर जो है हमारे डॉक्टर साहब को मारा जाता है कुछ गुंडों की जानिब से, तो इसकी बुनियाद पे हम लोगों ने एक एहतजाजन हमने ओपीडी बंद हुई और ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद एहतजाज हुआ, फिर सेक्रेटरी साहब ने आए हमारे पास और आकर हमारी बात भी सुनी और दाद रसी की। उसके अलावा हमारे सारे मुतालबात माने गए और आज रात को जो है वो एक बंदा उनमें से जिन पे FIR है वो भी अरेस्ट हुआ है। जब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें मान ली गई हैं और रिटर्न में हमें दे दी गई हैं, तो हमारा एहतजाज जो है हमने कॉल ऑफ किया उसकी वजह से। ओपीडीज खुलने पर मरीजों का रश लग गया। शहरी चेकअप के लिए ओपीडीज पहुंच गए। उनका कहना था कि ओपीडीज दोबारा खुलने पर खुश हैं। चेक करने के लिए देखते हैं, वो टेस्ट वेस्ट करेंगे फिर पता चलेगा। हाँ बस ये है कि पाँव का जख्म सही नहीं हो रहा अभी तक। ऑपरेशन हुआ ना, हड्डी टूट गई थी 2 जगह से, तो वो जख्म है ना अभी थोड़ा सा बाकी है, वो सही नहीं होकर दे रहा। शदीद गर्मी में शहरियों को ओपीडीज बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना था। जिना अस्पताल में डॉक्टरों और लवाहिकीन के दरमियान झगड़े के बाद 4 रोज तक अस्पताल की ओपीडी बंद रही, जिसकी वजह से मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आज अस्पताल की इंतजामिया और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तमाम ओपीडीज खोल दी, जिसके बाद मरीजों का इलाज भी शुरू हो चुका है, जिस पर मरीजों ने भी खुशी का इजहार किया है। कैमरामैन काशिफ कैमरा, इब्राहिम रिंद, सिटी 21। और मंगूपीर टाउन का मसला हल के करीब। टाउन चेयरमैन ने UC1 माई गाढ़ी में पार्क और सड़क तामीर कराने का ऐलान कर दिया। हाजी नवाज बरोही का कहना था कि सिंध हुकूमत के ताउन से शहर के कदीम गोठों में पसमानदगी खत्म की जा रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मंगूपीर टाउन की किस्मत भी जाग उठी। टाउन चेयरमैन ने सड़क और पार्क की तामीर करवाने का ऐलान कर दिया। हाजी नवाज बरोही ने UC1 माई गाड़ी में ग्रीन क्रेसेंट के जेर एहतमाम चलने वाले स्कूल की सालाना तकरीबे तकसीम इनामात में शिरकत की। अपने खिताब में उनका कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मंगोपीर टाउन की पसमानदगी दूर करने पर काम कर रहे हैं। टाउन चेयरमैन के ऐलान पर इलाका मकीन इकबाल रिंद ने तालीम के फरोग पर टाउन इंतजामिया और NGO की कारकर्दगी को सराहा। पसमानदगी यहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कुछ है, तो हम इस 76 साल मसले को मैं समझता हूँ 4 साल में हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतरी लाएं, पार्क बनाएं, बच्चों के लिए स्कूलें बनाएं, बच्चों के लिए जो है ऐसा सहूलत दें ताकि वो हमें याद करें। एक बात से हमें खुशी हुई कि हाजी नवाज बरोही और उसका टीम छोटे से छोटा भी प्रोग्राम हो, अगर उनको दावत दी जाए तो वो ज़रूर हाज़िरी भरते हैं। ये इसकी फराग दिली है और उसके आने से कुछ मसाइल भी हल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के लोग हैं उनका दिल खुशी से बाल बाल होता है कि हमारे टाउन के मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हमारे दावत पे आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। टाउन काउंसलर जावेद बरोही और ग्रीन क्रेसेंट के मुंतजिम खालिद खान यूसुफजई बोले कि पसमानदा और महरूमी के शिकार इलाकों में तालीम के फरोग के लिए चेयरमैन मंगोपीर टाउन और उनकी टीम का किरदार मिसाली है। रिंद गोट जैसे इस इलाके में हम लोग यहाँ पर 1994 से लेकर हमने यहाँ पर अपने काम का आगाज़ किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का जोश व खरोश भी बहुत ज़्यादा था और हम पर ये एतमाद का इजहार है। ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा चेयरमैन साहब का, हाजी नवाज़ बरोही साहब का, जो उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, गोट आए और स्कूल के हवाले से उन्होंने हमसे संजीदा गुफ्तगू की। NGO के तहत मुनक़दा तकरीब में स्कूल की तालबात ने टैबलो पेश किए, जबकि चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने पोजीशन होल्डर तलबा में असनाद और शील्ड तकसीम की। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एक और अब आपको बताएं कि शहर कायद में हीट वेव पारा 41 डिग्री को छू गया। शहर में ट्रैफिक पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप्स कायम कर दिए गए। दुरे शहवार की रिपोर्ट देखिए। कराची में सूरज का पारा हाई, शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप लगा दिए गए। मुख्तलिफ हुकूमती और फलाही इदारों समेत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिया गया, जहाँ शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए पानी और ORS फराहम किया जा रहा है। हीट स्ट्रोक की वजह से हमने लगाया ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ताकि उनके लिए गर्मी में थोड़ा आसानी हो जाए, आसानी हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत है। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस के इकदाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि कैंप्स का दायरा पूरे शहर में बढ़ाया जाएगा। सिंध पुलिस को हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि गर्मी में ये इकदाम उठाया है। पानी पिलाना बहुत ही अजर मिलता है, बहुत ही सवाब का काम कर रहे हैं। लोगों को हीट स्ट्रोक की
कि उससे बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। हम इनके भरपूर साथ देंगे सिंध पुलिस के। शहर में शदीद गर्मी के पेश नज़र माहिरीन ने भी आवाम से अपील की है कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और जितना हो सके गर्मी से बचाव के इक़दाम करें। कैमरामैन शहरियार अली के साथ दुरेशवार, सिटी 21। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी का असर न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी पड़ रहा है। चिड़िया घर की इंतज़ामिया ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात कर लिए हैं। जानते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट में। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची ज़ू में जानवरों का बुरा हाल। चिड़िया घर इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इक़दामात। एडिशनल डायरेक्टर ज़ू आबिदा रईस का कहना है कि जानवरों के पिंजरे में ठंडा पानी और बर्फ फराहम की जा रही है। कई जानवरों को सायादार जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम जानवरों के पिंजरों में पानी की मौजूदगी को बिल्कुल से यकीनी बनाया जाता है। इसके अलावा इनको बर्फ़ दिया जाता है और इनके पानी में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है ताकि जो है गर्मी की हिद्दत को वो कम से कम महसूस करें। इनको पिंजरों को कवर किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। जानवरों के डॉक्टर आमिर ने मजीद बताया कि जानवरों के लिए वाटर कूलर, शेड्स और खुसूसी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया है। खुराक में भी तब्दीली की गई है ताकि वो गर्मी से मुतासिर ना हो। शहर में सूरज का पारा हाई होने से शहरी तिल मिला उठे। शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल का रुख कर लिया। शहरी इमली, आलू बुखारे का शरबत पीते हुए दिखाई दिए। कहते हैं कि शदीद गर्मी में ठंडे मशरूब तस्कीन देते हैं। मजीद देखते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट में। आउट ऑफ कंट्रोल, ठंडे मशरूब शहरियों के लिए राहत का सामान। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। शहरी गर्म मौसम से बचने के लिए शरबत का इस्तेमाल मामूल बनाने लगे। शहरियों ने कहा कि ठंडे ठार मशरूबात से गर्मी के तोड़ में मदद मिलती है। वो जो बचपन से सुनते हैं हम लोग अम्मी लोगों से कि भाई ये जो है इमली और आलू बुखारे से जो गर्मी मिटाता है, तो इसलिए हम पीते हैं तो लाजमी एक रिफ्रेशिंग फील होता है। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं भी यही है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया इमली आलू बुखारे का, तो अच्छा है। इनके कहने पे आया था, हम लोग साथ ही निकले थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गर्म मौसम में जिस्म के दर्जे हरारत को मुतादिल रखने के लिए मशरूबात अहम किरदार अदा करते हैं। गर्मी के में शरबत की मांग में भी इजाफा हो गया। उसके अलावा ये जिगर की गर्मी को दूर करता है, मैदे को ठंडक पहुँचाता है और इसका रेट ज़रा मुनासिब है, 50 रुपये। बाकी अल्लाह पाक हमें भी रोज़ी देते हैं, तो इस तरीके से हम काम चला रहे हैं। हम बहुत खुश है हमारे साथ। शहरियों ने प्यास बुझाने के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी इमली, आलू बुखारे के शरबत से गर्मी भगा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21।